اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام اربعینیہ ہے اور ملینز کی تعداد میں اس وقت مؤمنین کربلا معلیٰ میں جمع ہے، اور ایک عظیم تعداد اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، چاہے وہ بین الحرمین ہو یا اس طرف باب القبلہ یا خیام کی طرف یا سدرہ کی طرف یا حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی طرف یا کربلا کے کہیں پر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے مومنین کی ایک عظیم اجتماع یہاں پر موجود ہے، ملینز تعداد ہے، اور یہ 40 تاریخ کا سب سے بڑا 40 ثابت ہوا۔ دقیق تعداد کے لیے انشاءاللہ مراجعہ کریں گے، چونکہ کل کا دن جو ہے وہ 40 کا دن ہے، اور 40 کے دن پر آپ جو ہے وہ ملاحظہ کر سکیں گے مختلف ذرائع سے کہ کس قدر جو ہے وہ تعداد 40 میں موجود ہے۔ عظیم تعداد ہے، پاکستانی زائرین، ہندوستانی زائرین اور خود دنیا کے مختلف علاقوں سے، البتہ زیادہ تر تعداد ظاہر ہے کہ ایک ایران اور عراق ظاہر ہے کہ خود ملک ہے، اور ایران جو ہے وہ نزدیک ترین سرحد ہے، تو وہاں سے مومنین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایک ثبوت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یقیناً 40 حسینی اور یہ عظیم اجتماع جو لوگ بھی ملاحظہ کریں گے، جو بھی ہوگا، وہ یقیناً اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ مہدویت، وہ اس سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ واقعاً یہ قوم جو ہے وہ کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے، یہ بہت بڑی قوم ہے اور طاقتور قوم ہے، چونکہ اس کی ایک ثبوت جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں خود 40 کے موقع پر۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور اور 40 حسینی، دونوں کے درمیان جو ہے اس عنوان سے گہرا ربط ہے کہ جیسے میں نے خود اس مناجات کا وہ جملہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، بلکہ زیارات میں بھی ہے یہ جملہ، دولت کریمہ کا تذکرہ، کہ ایک حکومت کا قیام ہونا ہے، الہی حکومت کا، چلانے والی جو شخصیت ہوگی وہ بھی الہی شخصیت ہے، حضرت امام مہدی روح و ارواحنا لہ الفدا، اور جو لوگ اس میں ہوں گے وہ بھی الہی لوگ ہوں گے، خدائی لوگ ہوں گے۔ اس حکومت کی مذہب شیعہ میں ایک نظریہ جو کہ اساسی نظریات میں سے ہے یہ موجود ہے، اور دوسرے جو فرقے ہیں اس میں یہ چیز اس صراحت کے ساتھ آپ نہیں دیکھیں گے جتنی آپ جو ہے وہ اس قوم کے یعنی مذہب شیعہ کے روایات اور احادیث میں ملاحظہ کر سکیں گے، اور بالخصوص جو اکابرین شیعہ ہے ان کے کلام میں بالکل جو ہے یہ واضح ہے کہ ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونا ہے، اور اس کے بعد جو حکومت بننی ہے وہ حکومت، بہت سارے لوگ یعنی زمانہ قدیم میں بہت سارے لوگ اس مسئلے کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ ان کے جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے وہ تشریف لائیں گے، پھر حکومت بن جائے گی، پھر جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ پوری دنیا پر چاہ جائیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ شیعوں کی ضعف کو دیکھ کے وہ یہ بھول چکے تھے کہ خدا کے کام جو ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، خدائی کاموں میں معجزے ہوا کرتے ہیں، خدا کے کام
उन्होंने जो है अगर तारीख़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखें तो ये मौजज़ा था कि फ़िरऔन का तख्ता पलट गया, वगरना फ़िरऔन को शिकस्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि उस कम मिक़दार में वो लोग उनके पास उनसे वो हज़रत मूसा क्या हज़रत फ़िरऔन को शिकस्त दे सकते थे। हज़रत इब्राहीम क्या फिर नमरूद का मुकाबला कर सकते थे। नमरूद जो है वो किस कदर उसकी ताकत थी। तो इन लोगों ने जो है वो अनबिया सालिहीन की मिसालें जो है वो भूल गए और उन्होंने यही कहा कि ये लोग जो है वो महज जो है वो या तो जनून की हालत में है या इनका जो है पता नहीं कि क्या निज़ाम है, लेकिन इनको ये मजाक की शक्ल में ये पेश करते थे। आज भी है जो अपने दिल बहलाने के लिए ये बातें करते हैं, लेकिन अरबईन हुसैनी के बाद बहुत सारे लोगों को यकीन हो गया। यकीन किस उन्वान से हुआ? अवलन तो उस हुकूमत का एक जलवा, उस हुकूमत का एक नज़ारा इन्होंने अरबईन के मौका पर मुलाहिज़ा फरमाया कि उस हुकूमत में जो रिवायात में मौजूद है यहाँ पर भी वो चीज़ें नज़र आती है। उन्होंने एक इस्लामी निज़ाम का मुलाहिज़ा किया कि इस्लामी निज़ाम जो है वो किस तरीके से बनना है। जिस तरीके से उस निज़ाम इलाहिया में जो हज़रत इमाम महदी रूही व अरवाहिना लहुल फ़िदा की हुकूमत है, उसमें मसलन कोई शख्स मोहताज नहीं होगा, एहतियाज उसको नहीं होगी, बग़ैर ये कि उसको ज़्यादा ज़हमत की ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि जो वो शख्स जो है वो इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। तो अरबईन हुसैनी में भी ये चीज़ नज़र आती है। बेशक कम दिनों के लिए क्यों ना सही, थोड़े वक्त के लिए क्यों ना सही, लेकिन इसमें कोई शख्स जो है वो भूखा नहीं रहता। कोई शख्स जो है वो उसको कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो फ़ौरन उसकी दादरसी की जाती है, फ़ौरन उसकी मदद की जाती है। उन्होंने देखा कि ये उस हुकूमत में भी मुमकिन है, चूँकि इनके पास अभी वो हुकूमत आई नहीं है। अभी ये है कि इसको ये कह सकते हैं ज़मीना साजी, इसको कह सकते हैं। गोया ये ज़मीना साजी में अगर ये कर सकते हैं, चाहे इंसान नहीं कर सकता, अगर नहीं करना होगा तो वो कर भी नहीं सकता। तो कुछ दिनों के लिए वो जलवा जो है वो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चौखट पे लोगों को नज़र आता है कि ये कौम जो है वो बेदार है। और उसके अलावा एक है कि पूरी दुनिया में, जैसे कल भी मैंने अर्ज़ किया था, लिसानियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, छोटी बात नहीं है। आप जाके अमेरिका में जाएंगे ना, अमेरिका जो अपने आप को पता नहीं क्या कहते हैं, वो किस कदर वो ताकतवर अपने आप को समझते हैं, किस कदर वो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं। जो मिडल ईस्ट के लोग हैं उनको वो अनपढ़ करके खिताब करते हैं। हाँ, तो उनके जो डांसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक डांसर था, तो उससे जब ये कहा गया था कि आपके बहुत सारे फैंस जो है वो मिडल ईस्ट में भी है, तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो लोग भी मेरे फ़ैन हो गए कि जिनको रहन सहन की तमीज़ नहीं है। एक रकास एक डांसर जो कोई पढ़ा लिखा डांसर नहीं है, अनपढ़ और जाहिल इंसान है, बुरे हालात की वजह से डांस करने पर मजबूर हो गए। एक अमेरिकन डांसर जो है, एक अमेरिकन रक्कास जो है, वो ये नज़रिया रखता है मिडल ईस्ट के लोगों के लिए जहाँ पर हम जिंदगी गुजारते हैं। तो उनके वो जो डॉक्टर इंजीनियर होंगे, उनके क्या नज़रियात होंगे खुदा जाने, और है भी नमूने मौजूद है वो क्या सोचते हैं। तो वहाँ पर भी आप जाएंगे ना, वो जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को समझते हैं, वहाँ पर भी कौमी तासुब मौजूद है। ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में जो ब्लैक पीपल है वो वाइट पीपल, और वाइट पीपल ब्लैक पीपल, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक तरीके से जो है वो इनहिराफात और तनाज़ो, ये हमेशा एक तनाज़ा इनके दरमियान रहता है। मजहबी तनफ़ुर को देख ले कि लोगों के दरमियान मजहबी तनफ़ुर कितना है। म्यांमार के हालात आप देख लीजिएगा, बहुत सारे ममालिक हैं, म्यांमार है या ख़ुद जो अरब ममालिक है, या हत्ता दूसरी जगहों पे आप देख लें
کہ کس قدر مذہبی مشکلات پیدا ہو چکے ہیں. مذہبی مشکلات ہے، ایک کسی اور دین کا ہے، ایک کسی اور. انڈیا میں آج کل کے اس دور میں جو لوگ اٹھے ہیں وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہندو مسلم کے مشکلات ہوتے ہیں، اور ابتدا سے اللہ مومنین کو حفظ و امان میں رکھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا جا کے آپ دوسرے ممالک میں جہاں سنی شیعہ کے مشکلات ہے، ہر جگہ پر مذہبی تنفر. مراد یہ ہے کہ تعصب جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر برقرار ہے، یا نسلی تعصب ہے، یا نجاتی تعصب ہے، یا جو ہے مذہبی تعصب ہے، یا جو ہے وہ ثقافتی تعصب ہے. ثقافتی تعصب بھی ہے. ثقافتی تعصب مثلا بعض ممالک میں خود آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ملک میں دو ثقافت کے لوگ ہیں. مثلا ایک جو ہے وہ ایک ثقافت کا ہے، دوسرا کسی دوسری ثقافت ہے، آپس میں ثقافتی مشکلات ہیں. لیکن جس طریقے سے روایات میں موجود ہے کہ حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت میں، چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ یہ ظہور ہے، حضرت کے اصحاب میں سے جو ہے وہ ہر علاقے، ہر ثقافت، ہر زبان کا شخص موجود ہوگا، لیکن مطیع امر مولا ہوگا. اللہ اکبر. مطیع امر مولا، یہ شخص مطیع امر مولا ہوگا. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہاں اربعین حسینی میں بھی آپ کچھ دنوں کے لیے کیوں نہ صحیح، عرب ہے، عجم ہے، مختلف ثقافت کا آدمی ہے، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، چند دن ہی کیوں نہ صحیح، لیکن جب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آپس میں بھائی ہے، بالکل بھائیوں کی طرح، جیسے کوئی اختلاف ہی نہ ہو. وہ لوگ جو غیر اربعین جو ہے وہ کسی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ شخص بھی موجود ہے اور لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قوم جو ہے جیسے اربعین میں ہے ویسے پھر عام حالات میں بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں ان کی پھر وہ چیز نہ رہے، لیکن اربعین میں جو ہے ایک دوسرے کے حتی خدمت کرتا ہے، پیر دباتے ہیں، پیر ایک دوسرے کا پیر، ایک دوسرے کے پیر دبانا، ایک دوسرے کے کپڑے دھونا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو یہاں پر وہ جو کنسپٹ ہے ظہور کا، وہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ فداکاری، چونکہ اس زمانے میں حضرت کے اصحاب کی ایک خصلت یہ ہوگی کہ وہ فداکار ہوں گے، حد درجے کے فداکاری، بہت زیادہ فداکار، اور ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کرنا اور فداکاری کرنا، وہ جو ہے وہ وہاں پر یہ سلسلہ چلے گا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ایک دوسرے کے لیے فداکاری کی جاتی ہے. یقین جانے کہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو کولر یا اے سی میں موکب میں وہاں پر ان کو کولر میں ان کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، خود باہر ہوتے ہیں گرمی میں. اور ابھی جا کے آپ کو اندازہ ہے کہ گرمی تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے، اقل یعنی دن کے ٹائم 45 ڈگری سینٹی گریڈ، پھر رات کو جو ہے تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی کولر وغیرہ نہ ہو تو گھر میں بغیر کولر کے یہاں پر حتی رات کو بھی مشکل ہو جاتی ہے چونکہ گرمی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت فداکاری ہے، انسانیت ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک ثبوت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سب سے اچھا دین جو ہے وہ انسانیت ہے. آ جائے نا، یہی تو انسانیت ہے. اور جو خود وہ کہتے ہیں انہوں نے کس انسان کو کیا وہاں پر اٹھا کے جو ہے وہ جانوروں کو، کتوں کو اٹھا کے ان کی خدمت شروع کر دیتے ہیں. ان کو کتوں کو چھوڑ دو اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو وہ دکھانا کہ ہم جو ہے وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں. آپ آ کے یہاں اربعین میں آ جائیے اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہاں پر انسانیت یہ ہے. مذہب شیعہ عین انسانیت ہے، انسانیت عین ہی مذہب شیعہ ہے. بغیر یہ کنسپٹ جو ہے وہ غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جو ہے وہ انسانیت اور چیز ہے اور دین اور چیز ہے. نہیں، جو دین خدا کی طرف سے ہے تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہے. دین فطرت کا دین ہے، ہر چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے اس قدر انسانیت اس میں آ جاتی ہے.
फसाद को अगर आप इंसानियत कह रहे हैं और गैर अखलाकी चीज़ों को अगर आप इंसानियत कह रहे हैं ना, ये फिर आपका वहम है, इंसानियत नहीं होती। इंसानियत का मिजाज फितरत का निज़ाम होना चाहिए, ना ये कि जो आपका दिल चाहे वो इंसानियत हो जाए। वो इंसानियत नहीं है। एक शख्स मसलन कहेगा मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके लोगों के मजहबी जगहों में अंदर जाके वहाँ मसलन नऊज़ु बिल्लाह शराब पीना चाहता हूँ, ये इंसानियत है, मेरी मर्जी है, मैं आज़ाद हूँ। ये इंसानियत हजरत नहीं होती। इंसानियत के वही है कि जो फितरत के मुताबिक इंसानियत होती है, और इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। तो यहाँ पर अरबईन हुसैनी में वो जो लोग कहते हैं कि इंसानियत, तो वो इंसानियत यहाँ पर मुलाहिजा की जा सकती है। उस इंसानियत को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ें जो है ज़हूर के साथ इनका बड़ा गहरा रब्त है। और एक ये है कि हज़रत के दौर में जब ज़हूर फरमाएंगे तो हज़रत जैसे खुद फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने सब लोगों को इकट्ठा किया और किसी काफिर पर, किसी मुशरिक पर, हत्ता जो हर्बी ना हो, कोई भी हो, किसी भी दीन को, किसी के ऊपर जुल्म नहीं फरमाया, बल्कि इस्लामी हुकूमत में वो लोग रहते थे और उनकी इज्जत जान और नामूस के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इनकी इज्जत जान नामूस मोहतरम है। इन लोगों को जो है वहाँ पर वो रहते थे, जो कुफार थे, ज़िंदगी गुजारते थे। हुकूमत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में भी यही निज़ाम रहा। और जब हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक्त भी निज़ाम यही होगा कि जो जिस दीन का भी है वो उस दीन पर बाकी रहे, किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होगी। हत्ता रसूलुल्लाह फ़तह मक्के से पहले उन लोगों ने रसूलुल्लाह को अज़ियत भी पहुँचाई थी, लेकिन चूँकि हुकूमत का तकाज़ा यह है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबको हमने माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दो। ये फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह की खुद जो है वो ये मिजाज है। और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इसी तरीके से, हत्ता फ़तह मक्का के बाद अहले तसन्नुन की किताबों में ये चीज़ें मौजूद है। हत्ता सहाबा जो अपने आप को बज़ाहिर सहाबा थे तो मुनाफिक, वगरना कहाँ का रसूलुल्लाह से जो है वो जो रसूलुल्लाह फरमाते थे वो फिर उस पर कोई शक करेगा। लेकिन बाज़ ने उसमें से कहा इन सबको कत्ल कर दो। रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो हमें अज़ियतें दी है। उनका अज़ियत दी है ना, अब ये सरेंडर हो चुके हैं, ये अब जंग नहीं कर रहे हमसे, सरेंडर हो चुके हैं। सरेंडर आदमी को छोड़ दीजिएगा, उसको वो नहीं करना है, तंग नहीं करना है। हुकूमत का ये निज़ाम होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर ये है कि किसी को कुछ कहना नहीं है, तंग नहीं करना है, अरबईन हुसैनी में भी यही चीज़ है। किसी भी दीन का आदमी हो, किसी भी मज़हब का आदमी हो, अरबईन में जो दाखिल हो गया ना, उसने खुद जो है वो सैयद शुहदा के ज़ायरीन का लिबास उसने पहन लिया ना, अंदर आया, सबको पता होगा कि ये शख्स किसी और दीन का, उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लिबास से मुराद ये नहीं है कि सियाह लिबास हो, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे जाहिर कर दिया जैसे वो ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए जा रहे हैं। उसकी उतनी ही इज्जत होगी जितने एक शिया इस्ना अशरी की इज्जत है, उतनी इज्जत उसको दी जाएगी। इससे बढ़कर यानी उसकी इज्जत जो है, इतनी इज्जत होगी कि ये शख्स जो है जैसे दूसरे लोगों की इज्जत हो, उसी तरीके से ये मोहतरम है। तो एहतराम जो है वो उस दौर का एहतराम जो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दौर में हर शख्स का एहतराम किया जाएगा, वलाउ वो शख्स जो है वो किसी और दीन का है, रसूलुल्लाह के कलमे का मुनकिर है। इससे बढ़कर और क्या, रसूलुल्लाह के कलमे का एक शख्स मुनकिर हो गया, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, तो इससे बढ़कर और क्या करें। ये सिलसिला है मजहब शिया का। शिया मजहब जो है वो अमनीयत का मजहब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। शिया मजहब अमनीयत का मजहब है। यहाँ किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि हतमन आप इस दीन की तरफ आ जाए। दीन के लिए किसी को मजबूर करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमारी जो अकाबिरीन की किताबें हैं, या जाके अइम्मा अज़हार अलैहिमुस्सलाम के अहादीस और रिवायात है, बल्कि कुरान, सब में आप देख लीजिएगा कि किसी के ऊपर जो अरबईन हुसैनी में वो एक सबूत है, पूरी दुनिया के लिए एक सबूत है। ये आके इसको चेक कर लें। ये हुकूमत अरबईन, इसको आप कह सकते हुकूमत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, एक झलवा। बस ये है कि वक्त के इमाम मासूम जो है वो ताइन नहीं है, लेकिन इस कौम में वो शऊर है कि
उसकी उम्मीद पर बैठ के इस कदर इन लोगों में जज्बा पाया जाता है। और हम ये कहते हैं कि ये इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ही कर रहे हैं, वगरना इस कदर ये बगैर मौजज़े के गैर मुमकिन है। कौन कर सकता है मौजज़ा? और एक चीज़ आपकी खिदमत में यह भी बयान करूं कि मजहबी बहुत ज़रूरी नुक्ता है, प्रोग्राम के आखिर में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं, इसको आप जहन में रख लीजिएगा। वो ये है कि बहुत सब जगहों पर मजहबी इज्तिमाआत होते हैं कि नहीं होते? सियासी इज्तिमाआत भी होते हैं, मजहबी इज्तिमाआत भी होते हैं, और उसके अलावा जो है वो जो कोई पढ़ा लिखा आदमी हो या किसी ज़रूरी बात के ऊपर वहाँ पर भी इज्तिमाआत होते, लेकिन वहाँ पर इख्तिलाफ भी होता है। वो लोग जो इख्तिलाफ रखते हैं ना, वो उन इज्तिमाआत में शिरकत नहीं करते, उस इज्तिमाआत में शिरकत नहीं। आज तक आपने कोई देखा कि हज पर कोई काफिर गया हो? नहीं जाता, चूंकि उसका काम ही नहीं है वो। आपने किसी हिंदू को देखा है जिसने अपना वो मखसूस लिबास पहन के मैं जा रहा हूं हज बैतुल्लाह करने के लिए? नहीं जाएगा तबान, उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा भी नहीं, खुद भी नहीं जाना चाहता। आप जाके सबसे बड़ा यानी एक इज्तिमा जो सिखों का इज्तिमा है, सिखों का इज्तिमा लाहौर में, वहां पर जो गुरुद्वारा है नानक जी का, वहां पर लोग जाते हैं? नहीं जाते। आज तक आपने देखा है कि वहां पर कोई हिंदू भी साथ गया हो कि मैं भी जो है ना नानक साहब के उस पर जो है ना वो जा रहा हूं? नहीं जाता कोई शख्स जो है मुसलमान को देखा है वहां पर वो करे, उसका काम ही नहीं है वहां पर। बात यह है कि अगर इसी तरीके से अगर एक सियासत वाला शख्स है, उससे लोग मुत्तफिक होंगे तो जाएंगे ना। फिक्री एतबार से, दीनी एतबार से इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि लोग। लेकिन अरबईन हुसैनी इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो है एक ऐसा इज्तिमा हो कि जो एक मजहबी इज्तिमा, बल्कि यहाँ पर सब आते हैं, वलाउ कम तादाद में क्यों ना हो, आते हैं यहाँ पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है कि जिसका हर दीन और हर फरहंग व सकाफत के साथ एक अपना राब्ता है, एक अपना एक रिश्ता है, एक अपनी जो है उनकी एक तरीके से मरबूत है उनके साथ, या इंसानियत के एतबार से, या दीनी एतबार से, या फिक्री एतबार से, या उन्होंने एक गुरु की शक्ल में सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और एक हीरो की शक्ल में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कबूल किया और अपने माशरे में कहा कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। अलबत्ता हमारा यह अकीदा है कि लाख दर्जे अरबईन जो है वो एक आलमी अरबईन है, और ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ भी एक आलमी ज़हूर इंशाअल्लाह होगा, और इंशाअल्लाह हम ज़िंदा रहें ताकि हज़रत ज़हूर फरमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ज़हूर की एक झलक जो है हमारे इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, यकीनन ये उनका मौजज़ा है कि अरबईन पर हम कम अज़ कम अगर हम उस तक न भी पहुँच सके कि हम उस वक्त तक ज़िंदा रहे कि हम इमाम ज़हूर फरमाएँ, लेकिन यह है कि कम अज़ कम अरबईन को हमने दर कर लिया, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। मौला आप सबको सलामत रखे। वक्त हमारा इंतहा पर पहुँच चुका है, और इन आयाम में मखसूसन कल जो है जब आप ज़ियारत अरबईन पढ़ेंगे तो ये एक दुआ हतमन कर लीजिएगा, वो है हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर के लिए। आए मिल के दुआ करते हैं, हाथ उठा के दुआ करें सब मोमिनीन की नियाबत में। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।